Good morning students, welcome back to SST class of 6th. In our previous video, we studied about the planet Earth, and in today's video, we will be studying about the other 7 planets. Okay, so first one is Mercury. It is the closest planet to the Sun. Closest means nearest planet to the Sun. It has no moon. इसका कोई भी moon नहीं है. During the day, the temperature of Mercury is 427 degrees Celsius, and when it is at night, the temperature is minus 183 degree Celsius. ठीक है, तो दिन में यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है. It's very hot, and at night it's minus 183 degrees Celsius. That's too cold. It takes 88 days to complete one revolution around the sun. और इसको सन का एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितने डेज लगते हैं? 88. इट इज़ नेम्ड आफ्टर द मिथिकल रोमन गॉड मरकरी, और मरकरी प्लैनेट का नाम रोमन गॉड के ऊपर रखा गया है. ओके, इट इज़ द ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. सो द नेक्स्ट प्लैनेट इज़ वीनस, और ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ब्राइटेस्ट और हॉटेस्ट प्लैनेट है. Why it is hottest? Because the atmosphere of Venus is mainly made up of carbon dioxide. It is named after the Roman goddess of love and beauty. और इसका नाम रोमन गॉडेस जो कि लव और ब्यूटी के लिए शो होती हैं उनके नाम पे रखा गया है. इट इज़ द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन, और ये सेकेंड प्लैनेट है सन से. इसका डिस्टेंस है, हालांकि मरकरी इज़ नियरेस्ट टू द सन बट इट इज़ नॉट वेरी हॉट. But Venus is the second most planet from the Sun, but it is hot because the atmosphere of Venus is mainly made up of carbon dioxide. Okay, its size is nearly equal to that of the Earth, और इसका साइज़ अर्थ के बराबर है. That's why it is called as the Earth's twin. इसलिए इसको अर्थ का ट्विन भी कहते हैं. ट्विन मीन्स जुड़वा. Like Mercury, it also has no moon, और मरकरी की तरह इसका कोई भी मून नहीं है. Now our third planet is Mars. It is the planet next to the Earth in the solar system. ये जो planet है अर्थ के बाद में आता है. अर्थ को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. So we are studying about rest of the planets. So Mercury, then Venus, Earth we have studied already. Now we are going to study Mars. Okay. It is named after the Roman god of war. ठीक है, ये रोमन गॉड जो कि वार को रिप्रेजेंट करते हैं उनके नाम के ऊपर रखा गया है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द रेड प्लैनेट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस दैट गिव्स इट अ रेडिश अपीयरेंस. और मार्स को हम क्या कहते हैं? रेड प्लैनेट भी कहते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड. यहाँ पे आयरन ऑक्साइड पाया जाता है जिससे कि इसका अपीयरेंस ये दिखने में रेड लगता है. Its rotation period is almost similar to the Earth, और जितना rotation period Earth का है similar इसका भी है. Mars has 2 known moons, Phobos and Deimos, और इसके 2 moons हैं जिनके नाम हैं Phobos and Deimos. Okay. Now the next planet is Jupiter. It is the largest planet of the solar system. ये solar system का सबसे बड़ा planet है. A large part of it is made up of gaseous material. Mainly जो इसका part है वो gases से बना हुआ है. It is named after the mythical Roman god Jupiter. ठीक है. It has 79 known moons revolving around it. इसमें कितने moons हैं? 79 moons. Therefore it is also known as mini solar system. इसलिए इसको हम मिनी सोलार सिस्टम भी कहते हैं. ठीक है. देन द नेक्स्ट प्लैनेट इज सैटर्न. इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. ये सोलर सिस्टम का सबसे ब्यूटीफुल सुंदर प्लैनेट है. देयर आर ब्राइट रिंग्स अराउंड इट्स इक्वेटर, और आप देख सकते हैं कि सैटर्न के चारों तरफ रिंग है. These rings are made up of icy particles, dust and gases. और जो ये रिंग है ये किसके बने हुए हैं? आइस पार्टिकल्स के बने हुए, डस्ट एंड गैसेस. It has 62 known moons. And how many moons Saturn have? 62 moons. The next planet is Uranus. It is the 7th planet from the Sun, and it is named after the mythical god of sky. Okay, and like Saturn, it has also रिंग्स अराउंड इट, और सैटर्न की तरह इसके भी चारों ओर रिंग्स हैं. और ये ग्रीक गॉड ऑफ स्काई के ऊपर इनका नाम
रखा गया है इस प्लैनेट का नाम। नाउ द नेक्स्ट प्लैनेट इज़ नेपट्यून। इट इज़ द 8th एंड द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन इन द सोलर सिस्टम। ये 8th प्लैनेट और सबसे फारदेस्ट, सबसे दूर प्लैनेट है सन से। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द मिथिकल रोमन गॉड ऑफ सी, और ये इसका नाम रोमन गॉड ऑफ सी के ऊपर रखा गया है। इट इज़ 17 टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ। व्हाट डू यू मीन बाय मास? मास मीन्स वेट, ठीक। तो इसका जो वेट है, मास है, वो 17 टाइम्स अर्थ के ज़्यादा है। इट हैज़ 14 नोन मून्स, और इसके कितने मून्स हैं? 14। नाउ द सैटेलाइट्स यानी कि उपग्रह। ओके, द सैटेलाइट्स आर सेलेस्टियल और हेवनली बॉडीज़ दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स। तो सैटेलाइट्स क्या हैं? हेवनली बॉडीज़ हैं जो प्लैनेट्स को चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। और प्लैनेट्स किसकी तरफ रिवॉल्व करते हैं? सन की तरफ। मिडिल में सन है, सन को रिवॉल्व प्लैनेट्स करते हैं और प्लैनेट्स को रिवॉल्व सैटेलाइट्स करते हैं। द वर्ड सैटेलाइट मीन्स एन अटेंडेंट और अ कंपेनियन। सैटेलाइट का मतलब होता है अटेंडेंट, जो साथ में रहता है, या कंपेनियन, ठीक है, यानी कि साथी। दे आर सो कॉल्ड बिकॉज दे रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स। और इन्हें ऐसा इसलिए कहा जाता है कि ये प्लैनेट्स के साथ उनका चक्कर लगाते हैं, उनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। द सैटेलाइट रोटेट ऑन देयर ओन एक्सेस। यहाँ पे एक्सेस मतलब एक्सिस का प्लूरल है। तो बहुत सारे सैटेलाइट्स होते हैं जो कि अपने ही एक्सिस पे घूमते हुए चक्कर लगाते हैं। द सैटेलाइट्स मूव अराउंड द प्लैनेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और जो सैटेलाइट्स होते हैं वो प्लैनेट का चक्कर किस डायरेक्शन में लगाते हैं? वेस्ट टू ईस्ट। टुडे वी नो मोर देन 160 सैटेलाइट्स इन आवर सोलर सिस्टम। और अगर हम सोलर सिस्टम में देखेंगे तो टोटल कितने सैटेलाइट्स हैं? 160। मरकरी एंड वीनस आर द ओनली प्लैनेट्स दैट डू नॉट हैव एनी सैटेलाइट्स। और सिर्फ 2 ही ऐसे प्लैनेट हैं, मरकरी और वीनस, जिनका कोई भी सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। हमारे अर्थ का सैटेलाइट क्या है? मून है, ठीक। लाइक प्लैनेट, सैटेलाइट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। जैसे कि प्लैनेट में कोई भी अपना लाइट नहीं होता, वैसे सैटेलाइट्स ऑल्सो डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। दे शाइन बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। और वो शाइन करते हैं क्योंकि उनमें सन का लाइट पड़ता है, जिसका रिफ्लेक्शन होता है। ओके, नाउ द मून। द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ। तो जो हमारा मून है वो हमारे प्लैनेट अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। इट इज़ द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू द अर्थ। और ये अर्थ के सबसे करीब है सेलेस्टियल बॉडी इन कंपैरिजन टू, ठीक है। इट इज़ अबाउट 3000। The moon is the only natural satellite of our planet Earth. It is the natural satellite of the Earth. It is the closest celestial body to the Earth and it is very near to the Earth. It is about 3,84,400 km away from the Earth. It has no light of its own. It reflects the light of the sun. जैसे कि हमें पता है कि planet की अपनी lights नहीं होती, in the same way satellite की भी अपनी light नहीं होती. It reflects the light of the sun. The moon appears to increase and decrease in size. और आपने देखा होगा, you have observed that the size of the moon increases and decreases. कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है. It appears at different positions and in different shapes at different times. और इसके अलग अलग shapes होते हैं और अलग अलग positions होती है. These are known as the phases of the moon. और इसी को हम क्या कहते हैं? Phases of the moon, यानी moon के shapes. The lunar calendar is based on the phases of the moon. और जो lunar calendar, lunar मतलब related to moon, जो moon calendar है वो किस पे based है? On the phases of the moon. Phases are caused due to the revolution of the moon around the earth. और ये phases क्यों होते हैं? क्योंकि जो moon है, जो कि एक satellite है, वो अर्थ का क्या करता है? रेवोल्यूशन करता है, चक्कर लगाता है. द मून टेक्स 27 days and 8 hours टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ. और जो हमारा मून है वो कितने दिन लेता है एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में? 27 days and 8 hours. द विजिबल शेप ऑफ द मून दैट रिफ्लेक्ट सनलाइट चेंजेस फ्रॉम नाइट टू नाइट. और आपने देखा होगा सनलाइट, जो मून की लाइट है वो भी क्या होती है?
चेंज होती रहती है नाइट टू नाइट। अगर फुल मून है तो बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस रहेगा, बहुत ज़्यादा लाइट रहेगा। इफ़ इट इज़ नो मून देन इट इज़ डार्क। ओके। When the moon travels from the new moon to the full moon phase, the visible portion increases. जो हमारा मून है न्यू मून से फुल मून की तरफ बढ़ता है तो उसका पोर्शन धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता जाता है। पहले वो छोटा साइज़ रहता है, फिर डे बाय डे इट कीप ऑन इंक्रीजिंग। दिस इज़ कॉल्ड वैक्सिंग ऑफ द मून, और इसी को हम क्या कहते हैं, वैक्सिंग ऑफ द मून, न्यू मून से फुल मून फेज़ को। ठीक। व्हेन द मून जर्नीज फ्रॉम द फुल मून टू अ न्यू मून फेज़, द विजिबल पोर्शन डिक्रीजेज एंड द मून इज सेड टू बी वैनिंग। और यही मून की जर्नी जब फुल मून से न्यू फेज़ में आती है तो उसका जो पोर्शन घटता जाता है तो उसे हम कहते हैं वैनिंग। अगर मून का जो पोर्शन है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो उसे वैक्सिंग कहेंगे, और मून का अगर विजिबल पोर्शन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो उसे हम वैनिंग कहेंगे। ठीक है। एक्चुअली द मून इज़ कॉन्स्टेंटली हाफ ब्राइट एंड हाफ डार्क, बट द एंगल ऑफ व्यू फ्रॉम द अर्थ कीप्स ऑन चेंजिंग। अगर हम देखेंगे तो मून का जो ब्राइटनेस है आधा ब्राइट रहता है, ठीक है, और आधा डार्क रहता है। When the dark hemisphere of the moon faces the earth, it is called a new moon night और अमावस्या। और जो डार्क हेमिस्फीयर रहता है मून का जब अर्थ के सामने फेस करता है तो उसे हम न्यू मून नाइट या अमावस्या भी कहते हैं, जिस दिन पूरा अंधेरा होता है। एंड व्हेन द ब्राइट हेमिस्फीयर ऑफ द मून फेसेस अस, इट इज़ कॉल्ड एज फुल मून नाइट और पूर्णिमा। और पूर्णिमा को हम पूरा चांद उस दिन निकला रहता है एंड मून हैज़ full brightness in its light. Okay. Sometimes when the moon comes between the sun and the earth, it casts its shadow on the earth. This is called an eclipse. Eclipse यानी कि ग्रहण। क्या होता है, कभी कभी मून जो होता है सन और अर्थ के बीच में आ जाता है और उसका शैडो अर्थ पे बनता है, उसी को हम कहते हैं ग्रहण। When it covers the sun completely, a total solar eclipse occurs. और जब ये सन को पूरी तरह से कवर कर लेता है तो हम इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। It becomes dark in the daytime. और दिन में भी क्या हो जाता है, डार्क, अंधेरा हो जाता है। एंड व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून, अ लूनार एक्लिप्स अकर्स। और जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है तो क्या होता है, लूनार एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण। सोलार एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण एंड लूनार एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण। There is no air and water on the moon. It does not have an atmosphere like our earth. और अगर हम मून पे जाएंगे तो वहाँ पे एयर और वाटर नहीं है, ना ही वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर है अर्थ की तरह। Thus there is no life on the moon. इसलिए ना मून पे कोई भी लाइफ नहीं है, ना एटमॉस्फेयर है, ना एयर है, ना वाटर है। The moon is very hot in the day 120 degrees Celsius and very cold in the night, that is minus 120 degree Celsius. ठीक है। It's very hot in the day and very cold in the night. On July 21, 1969, two American astronauts, Neil Armstrong and Edwin Aldrin, landed on the moon. They explored the surface of the moon. And for the first time, on July 21, 1969, two American astronauts, Neil Armstrong and Edwin Aldrin, landed on the moon. एस्ट्रॉइड्स यानी कि हिंदी में शूद्र ग्रह। शूद्र मीन्स छोटा, ठीक है, ग्रह मीन प्लैनेट। सो एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉल प्लैनेट लाइक हेवनली बॉडीज फाउंड इन द सोलर सिस्टम। सो वी कैन से एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉल प्लैनेट्स। दे आर लार्ज पीसेस ऑफ रॉक्स फ्लोटिंग इन स्पेस and they are made up of rocks. Most of them are located between Mars and Jupiter. और ज़्यादातर जितने भी एस्टेरॉइड्स हैं वो जुपिटर और मार्स के बीच में पाए जाएंगे। This area of the space is also known as the asteroid belt. और जो एरिया मार्स और जुपिटर के बीच में होता है उसे हम एस्टेरॉइड बेल्ट भी कहते हैं, because here only asteroids are found. They are also called as planetoids और minor planets. उन्हें हम planetoids या कि माइनर प्लैनेट्स, माइनर मीन्स स्मॉल प्लैनेट्स भी कह सकते हैं। साइंटिस्ट बिलीव दैट एस्ट्रॉइड्स आर द ब्रोकन पार्ट्स ऑफ ए प्लैनेट। और साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि एस्ट्रॉइड्स जो हैं वो प्लैनेट के टूटे हुए हिस्से हैं। ओके। मीटियोर्स, मीटियोर्स मीन्स शूटिंग स्टार्स,
जिसे हिंदी में हम उल्का पिंड कहते हैं। इन द नाइट यू मस्ट हैव सीन सम ब्राइट स्ट्रीक्स ऑफ लाइट मूविंग अक्रॉस द स्काई विद ग्रेट स्पीड, है ना। आपने कभी नाइट में देखा होगा कि एक ब्राइट लाइट मूव करती है अचानक से। These are called as meteors, और इन्हीं को हम meteors कहते हैं, and they are also called as shooting stars. Meteors are small pieces of rocks. Meteors are made up of rocks. Like many heavenly bodies, they also revolve around the sun. They cannot be seen as they are very small. तो हम उन्हें ऐसे नहीं देख सकते, they are very small. The meteors can be seen in the sky only when they enter the earth atmosphere. हम meteors या shooting stars को तभी देख सकते हैं when they enter into the atmosphere of the earth. Most of them burn up and become gases. और ज़्यादातर क्या होते हैं, जैसे अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं, they burn and become gases. Some big meteors do not burn up completely. और कुछ जो बड़े meteors होते हैं, they do not burn up completely. They reach the surface of the earth and are called meteorites. और ऐसे meteors जो कि अर्थ सरफेस तक पहुंच जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, meteorites. The earth they create large depressions known as craters. जब वो अर्थ सरफेस को हिट करते हैं, तो जब वो हिट करते हैं they create large depression mean गड्ढे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, craters. Many such craters are found throughout the world. Some of the famous craters can be seen at Ramgarh in Rajasthan and Arizona in the USA. और कुछ जो ऐसे craters हैं जो meteors द्वारा बनाए गए हैं when they hit the earth surface, जो कि है रामगढ़ इन राजस्थान एंड एरिजोना इन द USA. In the figure you can see the crater at Arizona in the USA is the largest known crater in the world. Okay. Now the comets यानी कि धूमकेतु यानी कि पुच्छल तारा. Comets are celestial bodies made up of snow and rocky dust. So comets are heavenly bodies. They are made up of snow and rocky dust. They also revolve around the sun in their orbit. और ये sun के चारों ओर revolve करते हैं. When comets reach near the sun, they develop a long tail that starts glowing. और जैसे ही comet sun के करीब आते हैं, they develop a long tail that starts glowing. Glowing means shining. The tail is thousands of kilometers long. और जो टेल होती है कॉमेट्स की, ये 1000 किलोमीटर लॉन्ग होती है. इन द पास्ट पीपल कंसिडर्ड कॉमेट्स एज बैड ओमेंस. और प्रीवियस ओल्डन टाइम्स में लोग कॉमेट को अच्छा नहीं मानते थे. ओमेन मीन्स श्राप, ठीक है, अभिशाप, तो खराब अभिशाप के रूप में मानते थे. साइंटिस्ट बिलीव दैट देयर आर अबाउट 2 बिलियन कॉमेट्स ऑर्बिटिंग द सन. द मोस्ट फेमस कॉमेट इज़ द हेलीज कॉमेट. और सबसे फेमस कॉमेट का नाम है हेलीज कॉमेट. इट कैन बी सीन वंस इन एवरी 76 ईयर्स. और ये हर 76 ईयर्स के बाद देखा जाता है. इट वॉज लास्ट सीन इन 1986. देर आर सम कॉमेट्स दैट टेक इवन मोर टाइम देन हेलीज कॉमेट टू ऑर्बिट द सन. तो हेली कॉमेट के अलावा भी बहुत सारे कॉमेट हैं जो 76 ईयर्स से ज़्यादा का समय लेते हैं सन का चक्कर लगाने में.